Hello everybody, welcome back to Self-Help Group for UPSC. In this video, we will be talking about geography. This video will be in two parts. The first part will be regarding prelims specifically, and second part will be regarding mains. But 80 to 90% of this video will be of this geography video as a whole will be talked about in this first video itself. मैं इसी में बात कर लूँगी एंड आप मेंस के लिए भी इस पर रिलाई कर सकते हैं बिकॉज इन दी सेकेंड वीडियो आई जस्ट बी टेलिंग यू सम लिटिल रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं लाइक फॉर मिनरल्स या फिर इकोनॉमिक जोग्राफी के लिए जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. रेस्ट ऑल इज़ इन दिस वीडियो एंड इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. In this video, we'll be talking about, first of all, what are the sources and approach to geography. Second, there were many questions that are NCERTs enough for geography. Third is how to do the mapping. And fourth is on videos for understanding ki what are the things, what are the resources, or what are the freely available videos on YouTube that you can refer for geography. Okay. So I'm here because I have myself experienced it and I cleared my last two prelims based on these resources only and मुझे मेंस में भी इनसे बहुत हेल्प मिली है. तो I am not referring any other resource for prelims and mains apart from these resources that I'll be talking about, so you can completely rely on them. So before moving on, I just wanted to tell you one important thing, that geography and environment over the years have been overlapping. UPSC is not clearly differentiating between these two subjects in many of the questions. For example, you can see here, Pella, here is the peak and these are the mountains. So when you see these questions, this is a mix of both environment as well as geography. Coming on to the second question, if you see, this is a question from geography book, which I already discussed in that environment video of mine, where I discussed the resources and strategy that you should see for environment. तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. So this, and if you remember, तो 2 से 3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग दी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. उसमें that question was talking about alpine vegetation. They have given you the description of a vegetation and they were asking about the national park. Now you see, ये सारे questions ऐसे हैं जहाँ पे they have mixed environment and geography. So आपके पास एक integrated approach होना ज़रूरी है. Follow the exam pattern जो UPSC पूछ रही है. So what you should do is कि या तो आप geography पहले पढ़िए या environment, but आप उसको एक के बाद एक पढ़िए, so that you have a better understanding and you are able to interlink both the things. Okay. So this was the thing that I wanted to tell you. Now, this is the resource. This is class 11th NCERT and this is also class 11th NCERT. This is basically about physical geography. So you have to start with fundamentals of physical geography. सबसे पहले आपको क्लास 11th की NCERT पढ़नी है जिसमें आप फिजिकल जोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले आप वर्ल्ड लेवल पे पढ़िए, उसके बाद कम टू द इंडिया पैटर्न. ओके, कि इंडिया के लेवल पे क्या है. Then this is the class 12th NCERT. Now this is India People and Economy. ये class 12th की है और ये भी Fundamentals of Human Geography class 12th की है. So जैसे India People and Economy है, so इसमें ना basically बहुत सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ लेंगे, बट एक चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर वेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट क्रॉप्स. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्रॉप्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया. दीज आर द क्वेश्चंस दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम दिस बुक. ओके, तो मैं ये नहीं कह रही कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपने की है. एंड दिस इज समथिंग दैट इज टेस्टेड इन रियल टाइम बाय मी. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्लास 11th और 12th की काफ़ी है. अगर आप ये 2 बुक्स कर रहे हैं तो रेस्ट बी अश्योर्ड कि आपका सिलेबस हो रहा है. 90% इज कवर्ड इन दिस. और उसके ऊपर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो जो दूसरा सोर्स आप पढ़ेंगे वहाँ से हो जाए. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर कमिंग आर स्टैटिक, और जो स्टैटिक नहीं है, मैप बेस्ड है, वो आप कर सकते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस जो स्ट्रैटेजी. ओके, सो नेक्स्ट इज लाइक फिजिकल जोग्राफी PMFIS. दिस बुक इज़ रियली गुड बट इट इज़ वेरी बल्की. आप इसको पूरा पढ़ नहीं सकते. एटलीस्ट फॉर मी, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है. मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ी थी, लाइक फॉर मिनरल्स मैंने पढ़ी थी, कहीं कहीं पे कुछ रिवर्स के लिए मैंने पढ़ी थी, बट देन मैंने ये रेफ़र नहीं की. मैंने सिर्फ मिनरल्स के लिए इसको थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि मेंस के टाइम पे चाहिए था. दैट्स इट. देन कम्स GC लियो. दिस बुक इज़ अगेन गुड. देखिए, बुक कोई ख़राब नहीं होती. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि आपका काम कितने में हो रहा है. दिस इज़ द सिंपल थिंग जो आपको याद रखनी है. तो आप अपने रिसोर्सेज जितने मिनिमम रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप उतना रिवाइज कर पाएंगे. सो
अगर आप 11th-12th की NCERT पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ इनफ. अगर आपने ये GC लियोंग पढ़ी है तो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. बट 11th-12th की NCERTs आर इनफ, एंड स्पेशली क्लास 11th की आप अच्छे से पढ़िएगा बिकॉज उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. नाउ आई विल गिव यू अ प्रूफ ऑफ दिस. These are the questions that came in 2023 paper. Now you see here it's talking about ये 65th question में this is from the earthquake, okay, seismic activity पे ये directly mentioned है NCERT में. Then coming on to this, ये soils की बात कर रहे हैं, this is also mentioned, ये आपको मिल जाएगा NCERT में. Again this is specific heat, temperature contrast, ये अगेन NCERTs में mentioned है. तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी बिकॉज ऑल दोज पीपल हु हैव रेड देयर NCERTs वेल विल बी एबल टू रिलेट कि ये क्वेश्चंस आप NCERT से कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन अगेन यू सी दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना वो आप NCERT से कर सकते हैं, इसलिए आपको उसके पीछे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अगले 3 महीने के लिए मुझसे स्ट्रैटेजी पूछेंगे कि हाउ टू कवर ज्योग्राफी, जो मैं 10 डेज की बात कर रही हूँ, दिस मच इज़ इनफ. आप क्लास 11th-12th की पढ़िए, इट्स मोर देन सफिशिएंट. उसमें 85 to 90% चीज़ें कवर हो जाती हैं जितनी आपको चाहिए, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं. एंड देन आई विल टेल यू कि उसको अच्छे से पढ़ना कैसे. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द अप्रोच, व्हाट इज़ द अप्रोच यू नीड टू एम्प्लॉय. फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT आपने पढ़ ली क्लास 11th की, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, देन फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड देन यू विल कम फॉर द क्लास 12th. नाउ NCERT की जो बुक है ना उसको एक्चुअली पढ़ने की बात है कि उसमें ना एक एक सेंटेंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन मांगते हैं, वो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएंगे. सो समटाइम्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बेसिकली आई विल टेल यू कि यू कैन रेफर टू अमित सेन गुप्ता सर्स वीडियो ऑन यूट्यूब. ही हैज़ डिस्कस्ड NCERT, उन्होंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर्स समझ नहीं आते थे, सो वॉट आई यूज टू डू वॉज कि आई यूज टू ओपन द बुक, देन आई यूज टू रीड लाइन बाय लाइन वट एवर ही यूज टू एक्सप्लेन. तो वो लाइन बाय लाइन आपको बुक खोल के पढ़ाते हैं, सो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, तो आप वो देख सकते हैं. देन कमिंग ऑन टू द नोट मेकिंग, आपको लग रहा होगा कि नोट मेकिंग बनाए या नहीं बनाए. अगर आपने अभी तक नहीं बनाए थे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मत बनाइए. व्हाट यू कैन डू इज, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, कोई पीक ऐसे पता चल रहे हैं जो आप एड ऑन कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन एड इट देयर एंड देन. आई विल एक्सप्लेन बाय दिस. यू सी दिस इज द थिंग विच आई यूज टू डू. मैं भी ना नोट्स नहीं बना पाई थी, तो व्हाट आई डिड वाज कि क्लास 11th और 12th की जो मैंने NCERTs पढ़ी हैं उसी में आई यूज टू एड ऑन. सो यू कैन सी हियर आई हैव एडेड द हिल्स, या फिर कोई भी नेशनल पार्क होगा, आप आगे देखेंगे रिवर होगी, मैंने वो सारी चीज़ें इसी में मैं ऐड करती थी. यू सी दिस इज़ द सॉइल चैप्टर, तो मैंने इसमें भी उधर पे ही ऐड किया है जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप ऐसे कर सकते हैं. सी दिस इज फ्रॉम एटमोसफेयर, जो भी मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगती थी आई यूज टू एडिट देयर एंड देन, सो दैट वाइल यू आर रिवाइजिंग ना यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस एंड यू कैन रिवाइज ईजिली. हाईलाइट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. NCERT में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप एनी लाइन. सो आप उसी से रिवाइज कीजिएगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो. अगर आपने नोट्स बनाए तो इट्स वेल एंड गुड, आप उधर पे ऐड कर लीजिएगा. सो नोट मेकिंग की कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट इज मैपिंग. मैपिंग के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर टू ईदर ऑक्सफर्ड या दूसरी जो ओरिएंट की आती है एटलस, हो जो भी आपके पास है दैट इज़ ओके, प्रोवाइडेड उसमें ज़्यादातर चीज़ें होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप इनमें से कोई भी मैपिंग के लिए ले सकते हैं एटलस. अब आपको क्या करना है, मैपिंग आपकी 2 बेसिस पे होगी. फर्स्ट होगा NCERT, सेकंड इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इन 2 को ध्यान में रखते हुए आपको करनी है मैपिंग. नाउ वट यू कैन डू इज ऑप्शन, एक जगह पे आपको जाना है रीजन वाइज, एक जगह पर आपको जाना है कॉन्टिनेंट वाइज. रीजन वाइज में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो लाइक व्हेन यू आर डीलिंग विद इंडिया. जब आप इंडिया का पढ़ रहे हैं तो आपको रीजन वाइज देखना है कि सपोज आज आपने 4 स्टेट्स कवर किए, कल आप 4 स्टेट्स करेंगे, तो उनमें यू विल सी थ्रू द लाइक नेशनल पार्क्स कौन से हैं, व्हाट आर द मेजर रिवर्स, पीक्स कौन से हैं. सो दिस इज हाउ यू सपोज टू स्टडी. कॉन्टिनेंट में ना यू विल सी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और NCERT में क्या मैंशन है. ये 2 चीज़ें जब आप देखेंगे ना आपको पता चलेगा अपने आप की व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे UPSC इंटरेस्टेड है. लाइक यू विल सी देयर आर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, दे वेरी लेवांट पे भी पूछा था, तो वो हमेशा उधर से क्वेश्चंस पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको रिपीटेड क्वेश्चंस दिखेंगे. इससे क्या होगा ना, यू विल इंक्रीज योर फेमिलैरिटी. देखिए आप 10 मिनट रोज़, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा ना, आप रोज़ 2 महीने तक 10-10 मिनट अगर आप
टाइम स्पेंड करेंगे मैप के साथ तो वो आपको IR में भी बहुत हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट में भी हेल्प करेगा, ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप रोज़ एक चीज़ देख रहे हैं तो आप एलिमिनेट करने की पोजीशन में होंगे कि दिस रिवर वॉज नॉट लाइक दिस। नाउ यू सी इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना उन्होंने ईस्टर्न घाट के बारे में पूछा है कि व्हाट आर द स्टेट्स जो ईस्टर्न घाट में आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से मैप देखा होगा तो यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो मैपिंग की वीडियोज़ के लिए अगेन आई हैव दो मैंने यहाँ पे बताए हैं। एक सुदर्शन गुज्जर सर की वीडियोज़ हैं, एक राज तनिल मैम की वीडियोज़ हैं। राज तनिल मैम की वीडियोज़ काफ़ी पुरानी है, उसमें ना थोड़ा क्लैरिटी कम लगी मुझे, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, बट आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 57 वीडियोज़ आर देयर एंड शी हैज़ कवर्ड एंटायर ज्योग्राफी इन दैट। तो आप वो भी देख सकते हैं, उसकी PPTs भी मार्केट में मिल जाती हैं, प्रिंट निकल जाती हैं, आप वो निकलवा के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि यहाँ से आप सिर्फ हेल्प लीजिए समझने में, लेकिन पढ़िए आप NCERT साथ में। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जो उन्होंने कराया है ना, दोज ऑल थिंग्स अगर आपने की वो भी काफ़ी हैं। वैसे ही तो सुदर्शन गुज्जर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उन्होंने मिनरल्स चीज़, मैंने उनसे ना मिनरल्स की बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं उनकी, इट्स वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया एंड वो ऑलमोस्ट आपको मैपिंग याद करा देंगे। सो इन दोनों में से जो आपको अच्छे से समझ में आए आप उस पर रेफर कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड। ओके, सो सी मैंने मैपिंग में भी आप यहाँ पे मैंने ये ना आपके लिए यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं अपनी बुक से कि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि आप वहाँ पे लोकेट कीजिए अपने मैप्स पे, सो दैट प्रायर टू 15 to 20 days प्रायर टू प्रीलिम्स आप क्या कर सकते हैं ना, आपको रिवाइज करने में ईजी पड़ेंगी ये चीज़ें। सो दिस इज़ वाई आपको वहीं पे लोकेट कर लेना जो भी आपको लग रहा है। यू सी मैं ना कर लेती थी, मेरी पुरानी जो एटलस है वो थोड़ा गुम हो गई है, सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा अभी कर नहीं पाई हूँ, जितना किया है मैं उतना आपको बता रही हूँ। ओके, सो दिस वॉज फॉर द मैपिंग। आपने मैपिंग कर ली। अब मैपिंग ना दो तरीके से, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके से आपको पढ़नी है, एक वर्ल्ड लेवल पे, एक रीजन वाइज जो आप पढ़ेंगे स्टेट वाइज। फिर आता है मैपिंग दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है, एक हो गया स्टैटिक, एक हो गया करंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो अभी न्यूज़ में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इससे आपका मिडिल ईस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो जो एरिया जहाँ पे चल रहा है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अफगानिस्तान वॉज इन न्यूज़, ओके, आफ्टर द तालिबान टुक ओवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और अफगानिस्तान वैसे भी बहुत न्यूज़ में रहता है। सो यू सी हियर यू विल सी दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन इन 2022। ओके, सो ये थोड़ा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर वो आपको पूछ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, इस पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। सेकंड इज सी यूक्रेन पे अगेन दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अभी चल रहा है तो वो अभी पूछ लें, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर पूछ लें, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड ये वहाँ पे आप लोकेट करना सीखे कि ये चीज़ न्यूज़ में है सो आई विल डू इट दिस वे। स्टैटिक में क्या होता है, दीज आर द थिंग्स दैट इज इन स्टैटिक। अगर आप कोई डैम पढ़ रहे हैं, कोई पास पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पे लोकेट करना सीखिए, तो आपको एलिमिनेशन में इजी पड़ेगा। सी दिस इज द क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। अगेन सी दिस इज द क्वेश्चन, अगर आप लोकेट करेंगे तो आपको करने में इजी होगा। दीज आर द क्वेश्चन जो स्टैटिक पार्ट में से, तो जो मैपिंग है ना वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों में से आती है। सो आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस वीडियो कि आपको क्या करना है। आपको अपने प्रायोरिटीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मिलेगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको रट के नहीं जाने होते कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, बट वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जितने ऑप्शंस हैं उनको भी लोकेट कीजिए, उनको भी पढ़िए डिटेल में कि वाई इज़ UPSC आस्किंग क्वेश्चंस ऑन देम, तो वो उनके इंपॉर्टेंट थीमेटिक एरियाज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट, ड्रेनेज पैटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें जहाँ से रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ओके, सो आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस वीडियो। अगर आपको आगे कोई भी डाउट है ज्योग्राफी को लेके, यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं और इस पे भी। बाकी ज्योग्राफी को लेके जो भी रिसोर्सेज होंगे मैं अपने टेलीग्राम सेक्शन में चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेकंड वीडियो विल बी बेसिकली फॉर मेंस की आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज मेंस में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स इज श्योर शॉट फ्रॉम ज्योग्राफी, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज है। ओके, सो उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें जो आपको करनी है, बट प्राइमरीली क्लास 11th एंड 12th पे आप रेफर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपको 11th और 12th पढ़ के जानी है, दिस मच इज इनफ। आप ऐसे करेंगे तो इट विल नॉट टेक यू मोर देन 10 days, एंड दैट्स वाई आई हैव रिटन इन दी वीडियो कि 10 दिन में आप आराम से कर लेंगे इंक्लूडिंग द मैपिंग। बस आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए एंड दैट यू विल गेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच।